So last week the topic was yeast and yeast product. What I found was that most of the students, they have not secured good marks in Google form. So I think again I'll revise it. Okay, in short, and then we'll go to next topic, that is role of ingredient used in bakery. So first thing we are going to discuss is yeast. Yeast is what? It is a unicellular microorganism which helps in raising the product, the baked product. So it is a unicellular microorganism. If you go in deep, so it is actually a fungi which helps in raising the baked products. Now, as we all know that yeast is a biological raising agent. Okay, we know there are basically three types of raising agent. One is biological, another one is chemical, third one is mechanical. So yeast is a biological raising agent which is used in preparing baked product. Now, uh, when yeast, what happens? Yeast reacts with the sugar which is present in the flour along with water. C12H22O11, that is sugar which is present in the flour, or the extra sugar which we have added, plus water, that is H2O. In presence of yeast, it gives 4C2H5OH plus 4CO2, where this is what? Ethanol or ethyl alcohol, which on baking evaporates. And this carbon dioxide, the main function is of carbon dioxide, which helps in raising any of the product. So this CO2 helps to increase the volume of baked product, especially the fermented product. So this is all about yeast. Now in our college we have prepared a variety of yeast product, like we have prepared buns, we have prepared white bread, brown bread, focaccia, baguette, multigrain bread, donut, rusk, we have also prepared croissant. It comes under laminated pastry actually. Okay. But yes, it is prepared with the help of yeast. So these are some of the products we have prepared in our kitchen. Now, when we talk about rolls or breakfast rolls,
Now rolls and breakfast rolls can be divided into two parts. One is soft and another one is hard. Soft roll and hard roll. Where soft roll is soft in texture, the basic difference is soft roll is soft in texture and hard roll is hard in texture. Okay, that is the basic difference between soft roll and a hard roll. हिंदी में बताएं तो सॉफ्ट रोल का मतलब है जिसको आप पकड़ोगे बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी. हार्ड रोल पकड़ोगे आपको, आप जब उसको प्रेस करोगे तो आप प्रेस नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स इट इज hard roll, and the one which you will press and it comes to its original shape after you leave it, so that is soft roll. Hard roll actually we have not prepared, but yes, a variety of it can be baguette. Okay, so baguette we have prepared, the French bread baguette. Focaccia is Italian bread. So रोल्स की जब बात पूछी जाएगी तो दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट रोल एंड हार्ड रोल. इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेकफास्ट रोल में व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन सर्व, और इन ब्रेकफास्ट इफ यू हैव टू give your products from bakery, what all products you will be choosing. So we can go for buns, we can go for white bread, multigrain bread, brown bread, donut, croissant. Okay, so these are some of the things which we can give. Apart from that, directly we have prepared single knot and double knot bread rolls. That is a variety of soft roll. So these all things we can give in morning breakfast. ये सारी चीजें जो है आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे सकते हो. क्लियर है? अब यहां पे किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए. नो वन इज एम. Yes, bread rolls, single knot and double knot, it can be served in breakfast. Now bread rolls, the plated one, the plated bread rolls, PLAITED, plated rolls, similar to your hair buns, मतलब कि आपके चोटी के जैसा जो हम लोगों ने बनाया था प्लेटेड रोल, उसको हम डिनर रोल भी बोलते हैं. डिनर रोल इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसका साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू दी सिंगल नॉट एंड डबल नॉट, तो उसको हम डिनर रोल बोलते हैं. और डिनर में क्वांटिटी के फूड के साथ में इट कैन बी सर्व द प्लेटेड रोल्स. यस, एनी क्वेश्चन? न्यू स्टूडेंट्स, ग्रुप सी के जो बच्चे थे जिनको समझ में नहीं आ रही थी, मीना लकड़ा हो गई ग्रुप ए में, मीना लकड़ा, अजीता, कहीं पे प्रॉब्लम है? आप लोगों ने बहुत कम मार्क्स स्कोर किया है. नो प्रॉब्लम. ओके, यस बेटा, आपको फॉर्मूला समझना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना. इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि अगर आप सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो इट इज शुगर. दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? शुगर प्लस वाटर in presence of yeast, it gives ethanol plus carbon dioxide. शुगर वाटर एक साथ में मिलेगा, ईस्ट भी जब वहां पे रहेगा तो ये जो है ये क्या, दिस इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फर्मेंटेशन. So fermentation is a process where
sugar in presence of water and yeast reacts to form ethyl alcohol or ethanol and carbon dioxide, where ethanol escapes at the time of baking and because of carbon dioxide baked product raise. मतलब कि शुगर और वाटर के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है ईस्ट के रहने पे तो बनता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमने लिखा है इथानॉल। इथानॉल जो है व्हाइल बेकिंग इट इवापोरेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इट हेल्प्स इन रेजिंग द फर्मेंटेड प्रोडक्ट, वो रेज करने के काम में आता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट। तो आपको बस यही समझना है फर्मेंटेशन में, आपसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछे। हाँ, जो बेकरी लिए है, जो स्पेसिफाई किए हैं कि माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज बेकरी, इन दैट केस दे मे आस्क दिस क्वेश्चन, अदरवाइज सिंपल थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अभी कोई क्वेश्चन है? एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? Okay. So now we know that what is fermentation, what is the action of yeast, what is yeast, and what all products can be prepared with the help of yeast. ये जान के अभी हम लोगों को जानना एक चीज जरूरी है कि बेकरी में इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज होते हैं, व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन बेकरी, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सी यू शुड बी हैविंग अ पेन एंड पेपर एज वेल, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स। पेन पेपर रखिए, लिखते जाइए, जहां पे समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल पूछिए, क्योंकि इसका एग्जाम फिर आपको कल देना होगा एंड नेक्स्ट डे देयर विल बी अ इंटरव्यू सेशन based on these topic. So keep a pen and paper and go on asking questions. So next is bakery ingredients. Or ingredients which are used in bakery. First and foremost is flour. Is it visible? Flour is visible or not? Visible है? Okay. Now see, flour, when we are talking about flour, तो फ्लावर का मतलब एज सच अगर आप नॉर्मल लेमैन्स वे में बोलोगे फ्लावर तो उसका मतलब होगा आटा, ठीक है। लेकिन व्हेन वी आर इन बेकरी, व्हेन वी से फ्लावर, तो उसका मतलब होगा रिफाइंड फ्लावर। और अगर मुझे व्हीट फ्लावर लेना है तो आई विल क्लियरली मेंशन व्हीट फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। Now see, flour is taken by milling process. Flour कैसे मिलता है हमें? मिलिंग करना होता है। आपने सुना होगा या आप देखे भी होंगे कि मिल में, जिसको आप चक्की बोलते हो हिंदी में, तो चक्की में हम आटा पिसवा के आ रहे हैं, सो दैट इज मिलिंग। पाउडरिंग ऑफ होल व्हीट, दैट इज मिलिंग। तो फ्लार कैसे बनती है? मिलिंग प्रोसेस से। नाउ एक फ्लार और एक व्हीट का चार पार्ट होता है।
husk, bran, germ and endosperm. Husk, the outermost part is husk. बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है वीट कैरनल का, दैट इज हस्क. कैरनल मतलब दाना. वीट का, गेहूं का एक दाना का सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हस्क. अब ये क्या होता है, जैसे ही आप गेहूं को तोड़ते हो तो उसके साथ में एक ब्राउन कलर का कवरिंग होता है उसके ऊपर. सो दैट इज नोन एज हस्क. उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, या तो मशीन में रिमूव करते हैं हस्क को, नहीं तो पुराने जमाने में क्या होता था कि पूरे वीट को जमीन पे फैला दिया जाता था और फिर उसके राउंड राउंड से गाय या भैंस जो है वो चलती थी. उससे क्या होता था कि आउटर पार्ट जो हस्क है वो रिमूव हो जाती थी, वो निकल जाती थी और फिर उसको हम लोग वीट पार्टिकल को हम लोग अलग हटा लेते थे और उस वीट पार्टिकल से जो सबसे बाहर का जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज ब्रैन. तो आपने जो गेहूं देखा घर पे उसका बाहर का सबसे पार्ट है दैट इज ब्रैन, जो ब्राउन कलर का है. नेक्स्ट इज जर्म. सबसे नीचे पार्ट होता है जर्म. जर्म क्या होता है, ये स्प्राउट बनाने का काम में आता है या फिर इसी से दूसरा आप प्लांट उगा सकते हो इस पार्ट से. ठीक है, जब आप इस दाने को अंदर डाल दोगे जमीन के अंदर और फिर पानी वानी डालोगे तो उससे नया आपको एक प्लांट निकल आएगा वीट का. सो दैट इज जर्म पार्ट. नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म. नाउ एंडोस्पर्म पार्ट इज द पार्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिफाइंड फ्लावर. अगर we have to make refined flour, so what we have to do, we have to use this endosperm part. एंडोस्पर्म पार्ट व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि आपने मैदे को देखा बिल्कुल व्हाइट कलर का. सो दैट इज एंडोस्पर्म. अगर होल व्हीट जो है, होल व्हीट फ्लावर दैट मींस आटा, गेहूं का आटा, तो उसमें क्या चीज होगी, ब्रैन, जर्म, एंडोस्पर्म, तीनों चीज. और अगर मैदा है तो वो होगा केवल एंडोस्पर्म पार्ट से. तो ये है व्हीट कैरनल के बारे में. नेक्स्ट विल क्विकली गो कि ये जो व्हीट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो दो तरीके का होता है, हार्ड व्हीट एंड सॉफ्ट व्हीट. हार्ड व्हीट एंड सॉफ्ट व्हीट. हार्ड व्हीट से बनता है स्ट्रॉन्ग फ्लावर और सॉफ्ट व्हीट से बनती है वीक फ्लावर. तो ये हार्ड और सॉफ्ट व्हीट है. हार्ड व्हीट से बन रहा है स्ट्रॉन्ग फ्लावर, सॉफ्ट व्हीट से बन रहा है वीक फ्लावर. अब स्ट्रॉन्ग फ्लावर और वीक फ्लावर हो गया दो वैरायटी ऑफ फ्लावर जो कि हम बेकरी में यूज करते हैं. उसके नाम बहुत सारे हैं. अगर आप देखोगे किसी बुक में सर्च करोगे या नेट पे सर्च करोगे आपको मिलेगा पेटेंट फ्लावर, आपको मिलेगा ब्रेड फ्लावर, पेस्ट्री फ्लावर, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लावर. तो ऐसे वैरायटीज नाम के हैं, लेकिन जो बेसिक चीज हमें जाननी है वो है कि हमें अगर कोई भी ईस्ट प्रोडक्ट बनाना है सो वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग फ्लावर जो कि बनती है हार्ड व्हीट से. और ईस्ट प्रोडक्ट को छोड़ करके कोई भी चीज हमें बनाना है बेकरी में तो वो बनेगी सॉफ्ट व्हीट से, जिसको मिलिंग करके बनती है वीक फ्लावर. तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फ्लावर एंड वीक फ्लावर. अब होता क्या है ये स्ट्रॉन्ग फ्लावर और ये वीक फ्लावर, इसका नाम ऐसा है क्यों? तो स्ट्रॉन्ग फ्लावर जब हम बात करें और वीक फ्लावर, तो आपने पढ़ा होगा कि वीट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है. ग्लियाडिन एंड ग्लूटानिन. ये दो प्रोटीन है जो वीट कैरनल में प्रेजेंट होती है. जब इसको हम पाउडर करते हैं और
उसको पानी के साथ मिला के एक आटे का डो बनाते हैं, तो क्या होता है, ये gliadin और ग्लूटानिन जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटेन। इसका नाम है ग्लूटेन। तो ये ग्लूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब आप आटे के अंदर पानी डालोगे और इसको अच्छे से नीड करोगे, नीड करना मतलब गूंद लेना, अच्छे से आटे को गूंदोगे तो आपको मिलेगा क्या, उसके अंदर फॉर्म होगा ग्लूटेन चेन। ग्लूटेन चेन जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी। नाउ इलास्टिसिटी को सिंपल वर्ड में अगर हमें समझना है तो आप ले सकते हो एक रबर बैंड। ठीक है, एक रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करोगे तो वो कुछ दूर तक स्ट्रेच होगी और फिर बाद में वो टूट जाएगी, आपको चोट भी लगेगी। वैसे ही होता है ग्लूटेन, कि ग्लूटेन चेन जो बन रही है उसके अंदर सर्टेन लिमिट है कि वो उतना दूर तक रेज करेगा। उससे ज्यादा अगर होगा तो क्या होगा, वो क्रैक आ जाएगा, जो बेक प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसमें क्रैक आ जाएगी। तो सिमिलर इज योर ग्लूटेन चेन, जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एक सर्टेन लेंथ तक। फॉर एग्जांपल एक ब्रेड बना रहा हूं मैं, व्हाइट ब्रेड, तो वो सर्टेन लेंथ तक राइज करेगा। अब उससे ज्यादा अगर उसको राइज करना होगा तो फिर क्या होगा कि अगर उसमें ग्लूटेन चेन कम बनेगी तो वो क्रैक आ जाएगा। जो टॉप क्रस्ट होगी यहाँ पे, सपोज ये एक ब्रेड है जिसमें प्रॉपर ग्लूटेन चेन है, वो ऐसा दिखेगा, जिसमें प्रॉपर ग्लूटेन चेन नहीं है वो ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा एंड देन देयर इज अ क्रैक ऑन द टॉप। यहाँ पे क्रैक आ गई, क्यों? क्योंकि ग्लूटेन चेन जितना चाहिए था हमें ब्रेड बनाने के लिए उतना नहीं था, या फिर हमने व्हीट फ्लावर यूज कर लिया बनाने के लिए। तो सिंपल सा हमें समझ में आया कि व्हीट में दो प्रोटीन होती है, gliadin एंड ग्लूटानिन। जब व्हीट के अंदर हम पानी ऐड करते हैं और उसको नीड करते हैं तो बनता है ग्लूटेन। ग्लूटेन चेन जो है उसका काम क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। इलास्टिसिटी से क्या होती है, हमारा बेक प्रोडक्ट राइज होता है सर्टेन लेवल तक। अगर ग्लूटेन चेन प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, राइज होने के बाद में देयर विल बी क्रैक ऑन द टॉप, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा, ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। फाइनली आपका प्रोडक्ट जो होगा वो संकन हो जाएगा, मतलब कहीं से उठा हुआ और कहीं पे बैठा हुआ। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूटेन। नेक्स्ट, इतना दूर तक समझ में आया? ग्लूटेन का फंक्शन आपको समझ में आया? नाउ सी स्ट्रॉन्ग फ्लावर और वीक फ्लावर। स्ट्रॉन्ग फ्लावर में क्या खासियत है? स्ट्रॉन्ग फ्लावर में खासियत है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और वीक फ्लावर में क्या है खासियत, प्रोटीन कंटेंट लेस होगा। स्ट्रॉन्ग फ्लावर जब हम यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फ्लावर में WAP ज्यादा होगा, more WAP। WAP is what? वेरी गुड। सो WAP इज वाटर एब्जॉर्प्शन पावर, मतलब कि एक जो आपका आटा है वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम बोलते हैं WAP। तो WAP स्ट्रॉन्ग फ्लावर में ज्यादा होगा, वीक फ्लावर में कम होगा। ठीक है, टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ राइजिंग और रेजिंग।
यहाँ पे होगा क्या, मोर टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिंग, यहाँ पे लेस टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिंग। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग फ्लावर यूज कर रहे हैं तो वहां पे रेज जो है, रेजिंग जो है वो ज्यादा होगी, और जहां पे हम वीक फ्लावर यूज कर रहे हैं वहां पे रेजिंग उतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। और कम इसलिए होगा क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें प्रोटीन कम है, प्रोटीन इन द सेंस ग्लूटानिन एंड gliadin, जो कि कन्वर्ट होता है ग्लूटेन चेन। तो ये हो गया फ्लावर के बारे में कि फ्लावर जो है यूजुअली, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, फ्लावर जो हम लोग यूज करते हैं बेकरी में वो दो तरीके का है, स्ट्रॉन्ग फ्लावर एंड वीक फ्लावर। स्ट्रॉन्ग फ्लावर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, strong flour is used for making yeast product, for making yeast products, sorry, not yeast, yeast products like bread. Wheat flour, wheat flour is used for preparing cookies, pastry, quick bread. Quick bread example is muffin. तो ये दो तरीके का फ्लावर जो है वो यूज होता है बेकरी में, वन इज स्ट्रॉन्ग फ्लावर, सेकंड वन इज वीक फ्लावर। स्ट्रॉन्ग फ्लावर ईस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है, वीक फ्लावर कुकीज, पेस्ट्री, क्विक ब्रेड्स बनाने के लिए, स्पॉन्ज, ये सब चीजें बनाने के लिए यूज होती है वीक फ्लावर। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर, नाउ शुगर की जब बात होगी तो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर थ्री वेराइटीज ऑफ शुगर व्हिच इज यूज्ड इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। ठीक है, वन इज कैस्टर शुगर, सेकंड वन इज आइसिंग शुगर, थर्ड वन इज ग्रैनुलेटेड शुगर। तो यूजुअली तीन तरीके का शुगर, एंड वन इज ब्राउन शुगर एज वेल। तो बेकरी की जब हम बात करें तो बेकरी में हम लोग तीन शुगर यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज कैस्टर शुगर, कैस्टर शुगर को बेकर शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कैस्टर शुगर, सेकंड वन इज आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर इज कन्फेक्शनर शुगर, एंड थर्ड वन इज ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हम वहां पे यूज करते हैं जहां की हम लोगों को ब्राउन कलर प्रोवाइड करना होता है प्रोडक्ट्स में। When we have to give a brown color in fruit breads and all, so we use that brown sugar. उसके अलावा जो होती है वो होती है ग्रैनुलेटेड शुगर, जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज होती है। नाउ तो शुगर तीन तरीके के हो गए, और हम बेकरी में यूज करते हैं कैस्टर शुगर, एंड कन्फेक्शनरी में यूज करते हैं आइसिंग शुगर। कैस्टर शुगर कैसा दिखता है, बिल्कुल बारीक रहती है, सॉल्ट के जैसा, सो दैट इज कैस्टर शुगर। आइसिंग शुगर बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म होगा, सो दैट इज आइसिंग शुगर। तो कैस्टर शुगर इज बेकर शुगर, आइसिंग शुगर इज कन्फेक्शनर शुगर। ये है शुगर। नाउ शुगर का काम क्या है, शुगर का काम आपसे पहले भी बताया गया था। नेक्स्ट विल बी कमिंग ऑन द वर्क ऑफ शुगर। शुगर जो है सबसे पहला काम है उसका स्वीटनेस प्रोवाइड करें, नेक्स्ट इज कलर प्रोवाइड करें, नेक्स्ट इज फूड फॉर ईस्ट। So these are the three basic work of sugar in bakery. First one is it provides sweetness, second one it provides color, and third one it acts as food for yeast. That means yeast को अगर खाना देना है, yeast को हमको grow करना है, तो हमको उसको खिलाना पड़ेगा sugar. So these are the basic functions of sugar.
क्लियर है? इट एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव एज वेल। अगर आपको ज्यादा दिन तक कोई सामान को रखना है तो वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी। So it acts as preservative. So these are the functions of sugar. Next, क्लियर है? शुगर में किसी को प्रॉब्लम है आपको? नेक्स्ट इज सॉल्ट। अगेन सॉल्ट का जो बेसिक फंक्शन है, प्रोवाइड सैवरी टेस्ट। सैवरी मीन्स, ओके, इट इज नॉट विजिबल। Okay, so I'll be rubbing this sugar and flour. So next one is salt. Function of salt is, first thing is it provides savory taste. सैवरी टेस्ट का मतलब है नमकीन। नमकीन टेस्ट जो है वो आपको देता है सॉल्ट। उसके बाद दूसरा फंक्शन है इसका, इट स्ट्रेंथन्स ग्लूटेन चेन। जो ग्लूटेन चेन बन रही है, जो हम लोगों ने देखा कि फ्लावर में जब हम वाटर डाल रहे हैं और उसको नीड कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो बनती है ग्लूटेन चेन। तो ये ग्लूटेन चेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सॉल्ट। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट इज इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे बेक प्रोडक्ट में तो क्या होगा? फाइनली आपका बेक प्रोडक्ट जो है उसका प्रॉपर टेक्सचर नहीं आएगा, क्रस्ट में क्रैक होगी। तो इसके लिए हमें सॉल्ट ऐड करना होता है ताकि जो एक्शन है ईस्ट का वो कंट्रोल हो। एंड लास्ट वन इज अगेन इट एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव। So these are the function of salt. क्लियर है? तो स्ट्रेंथन्स ग्लूटेन चेन का मतलब है कि अगर हम कोई भी बेक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो पहला काम होगा कि वो स्ट्रेंथन करेगा ग्लूटेन चेन को, और दूसरा काम होगा कि वो कंट्रोल करेगा एक्शन ऑफ ईस्ट को। ईस्ट ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही ग्रो करेगी। क्लियर है? कोई क्वेश्चन सॉल्ट से? एनी क्वेश्चन? यस। टेबल सॉल्ट जो है वही यूज होती है जो नॉर्मल हम लोग घर पे यूज करते हैं, दैट इज टेबल सॉल्ट। यस। सॉल्ट का अगर हम वेरिएशन में जाएंगे तो दे आर अगेन ब्लैक सॉल्ट एंड देन रॉक सॉल्ट एंड देन सी सॉल्ट एंड देन टेबल सॉल्ट। नेक्स्ट इज फैट्स एंड ऑयल्स। अगर हम केवल फैट भी बोले, if you are telling only fat also, that means it is including oil as well. The basic difference between fat and oil, there can be a question in interview, what is the difference between fat and oil? So fat is what? Actually oil is liquid in texture and fats are solid. Okay. Second thing is fats, oil gets converted into fat by the process of hydrogenation, where hydrogen atoms are infused inside oil in presence of catalyst. ठीक है, हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा हुआ। बेकरी के हिसाब से देखिए फैट एंड ऑयल का काम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज क्रम्बली टेक्सचर। सेकंड इज सॉफ्टनेस।
ओके, सो बेसिकली जो क्रम्बली टेक्सचर आता है, समटाइम इट इज यूज्ड एज ग्लेज एज वेल। सो आपने देखा कुकीज में जो क्रम्बली टेक्सचर आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ फैट। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड सॉफ्टनेस। आपने देखा कि जो हम लोग बना रहे हैं ब्रेड, तो ब्रेड में क्या है, ब्रेड का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, उतना ज्यादा चीवी नहीं है, इट इज वेरी सॉफ्ट, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। एंड नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज अ ग्लेज, मतलब अगर आपका बेक प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद अगर आप मेल्टेड बटर जो है ऊपर से ब्रश कर रहे हो, तो इट विल गिव ग्लेज टू द बेक प्रोडक्ट। So this is the basic function of fat and oil. Apart from it, एक बहुत important जो function है कि it breaks gluten chain. अब देखिए, आप देखे होंगे ब्रेड आपने बनाया, उसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा है, वहीं पे when you are preparing cookies, when you are preparing sponge, when you are preparing fruit cake, not sponge, we can say, we can go for fruit cake, तो fruit cake और cookies में आप देखेंगे कि फैट जो है इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फैट का परसेंटेज ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन द ग्लूटेन चेन, जो ग्लूटेन नेटवर्क फॉर्म हो रही है उसको तोड़ने का काम करता है ये फैट एंड ऑयल। सपोज अगर आपका कुकीज में ग्लूटेन चेन ज्यादा होगा, तो रिजल्ट क्या आ गया होगा, रिजल्ट ये होगा कि आपका कुकीज फाइनली चीवी बन जाएगी, आपको उसको चबाना पड़ेगा खाने के लिए, ठीक है। देयर आर certain varieties of cookies which are actually chewy as well, ठीक है, that is an exception, but mostly the cookies are crumbly in texture, okay, तो crumbly texture के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा फैट एंड ऑयल डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि ग्लूटेन नेटवर्क जो है उसको ब्रेक कर देगा, ग्लूटेन नेटवर्क को फॉर्म नहीं होने देगा। समझ में आया कि और डीप में जाके समझे? ग्रुप सी, मीना लकड़ा, प्रियंका, ए के बच्चे, आ गया आप लोगों को समझ में? ओके, नहीं आया तो बोलना। तो ये जो है, जब आप ग्लूटेन, आपको जैसा मैंने बताया कि व्हेन वी आर एडिंग वाटर इनसाइड फ्लावर एंड देन वी नीड इट विद द हेल्प ऑफ आवर नकल्स, हम लोग उसको नीड करते हैं, गूंथते हैं, तब बनता है एक डो, ठीक है। अगर हम उसमें ज्यादा ऑयल डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो आप कचौरी का, जो इंडियन में बनती है, तो आप लोग क्या कहते हो, कचौरी में हम ज्यादा तेल डाल देते हैं, फाइनली व्हेन यू आर हैविंग इट, इट मेल्ट्स इन योर माउथ, व्हाई, बिकॉज देयर इज मोर अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल इनसाइड इट, और फैट एंड ऑयल होने के कारण क्या होगा कि वो चीवी नहीं होगा, उसको चबाने की जरूरत नहीं है, वो माउथ मेल्टिंग होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, क्लियर है? वाटर, वाटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बेकरी के लिए, क्योंकि वैरीज करता है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ ब्रेड वी यूज ल्यूकवार्म वाटर, वहीं पे व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग योर पेस्ट्रीज वी यूज कोल्ड वाटर, ठीक है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कुकीज वी यूज नॉर्मल वाटर। तो water also plays an important role. Now, in case of bread, we use hot water. Sorry, the lukewarm water. तो lukewarm water क्यों यूज करते हैं हम लोग? lukewarm water हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो ईस्ट है, जो रेजिंग एजेंट ईस्ट है, वो उसको एक टेम्परेचर मिले और वो जल्दी से ग्रो करे। दैट इज वाई वी यूज lukewarm water in case of ईस्ट प्रोडक्ट, ईस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ल्यूकवार्म वाटर यूज करते हैं। वहीं पे वी यूज कोल्ड वाटर व्हाइल प्रिपेयरिंग
पेस्ट्री और लैमिनेटेड प्रोडक्ट्स। सो पेस्ट्री और लैमिनेटेड प्रोडक्ट में हम लोग कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं। कोल्ड वाटर क्या काम कर रही है? कोल्ड वाटर यहाँ पे ये काम कर रही है कि जो भी फैट इसमें ऐड हुआ, आपने पढ़ा होगा पफ पेस्ट्री में 1:1 रेशियो रहता है फैट इज टू फ्लावर। तो इतना ज्यादा जब फैट जाएगा तो जाहिर सी प्रोडक्ट है कि जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो बेक करते समय उसमें से जो भी आपने इनकॉर्पोरेट किया बटर या फैट या मार्जरीन वो बाहर निकलने लगे। सो दैट इज व्हाई वी यूज कोल्ड वाटर इनसाइड इट। कोल्ड वाटर जो है वो ठंडा टेम्परेचर देगा बटर को या मार्जरीन को, तो जिसके कारण वो जमा रहेगा उस डो के अंदर एंड फाइनली जब आप बेक करेंगे तो आपको फ्लेकी और क्रिस्पी लेयर्स मिलेंगे। So that is by cold water. So water here in bakery is used in two ways. One is lukewarm water, second one is cold water. Next, clear है सबको? Next is raising agent. Now raising agent, as I told you, usually three types of raising agent: biological, chemical and mechanical. तो आप देखिए बायोलॉजिकल हम लोगों ने ईस्ट पढ़ लिया। ईस्ट इज बायोलॉजिकल रेजिंग एजेंट। बायोलॉजिकल मतलब जो लाइव रहता है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा चीज है, उसको हम यूज कर रहे हैं रेजिंग के लिए। सबसे पहले रेजिंग एजेंट क्या है? रेजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो आप किसी भी चीज में डालोगे तो वो प्रोडक्ट राइज करेगी। उसका सरफेस एरिया अगर इतना सा है, वो रेजिंग एजेंट आपने डाल दिया तो वो अब इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा वॉल्यूम। So that is the work of a raising agent, to increase the volume of any of the product. तीन तरीके के हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को रेज करने के लिए, so that is biological raising agent. केमिकल, जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल में ईस्ट हो गया, जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं फॉर रेजिंग, फॉर एग्जांपल बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। Baking soda is sodium bicarbonate. Baking powder is sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate and cream of tartar. So baking soda, baking powder, mechanical is by whisking or by folding. These are mechanical method. That is with the help of a whisk, we whisk the product so that air is incorporated inside. जो एटमॉस्फेयर का एयर है वो अंदर ट्रैप होगी। फॉर एग्जाम्पल योर विप्ड क्रीम, जब आप विप्ड क्रीम बनाते हो, जब आप बीट करते हो टू एंड फ्रो मोशन में, एयर ट्रैप होती है उसमें, और विप्ड क्रीम जो इतना सा रहता है वो जस्ट डबल वॉल्यूम में हो जाता है आफ्टर बीटिंग, क्योंकि उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो गया, एयर अंदर ट्रैप हो गई है। So whisking and folding are two ways of mechanical raising. Now where these things are used, biological raising agent कहाँ पे यूज होगा, केमिकल कहाँ यूज होगा, मैकेनिकल कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो है वो आपको ब्रेड प्रोडक्ट्स में यूज होगा, ब्रेड एंड ब्रेड प्रोडक्ट्स। केमिकल कहाँ पे यूज होगा? फॉर कुकीज, क्विक ब्रेड्स। क्विक ब्रेड का मतलब है मफिन्स। सो क्विक ब्रेड, कुकीज, ये बनाने के लिए केमिकल यूज होगा। मैकेनिकल फॉर प्रिपेयरिंग स्पॉन्ज, फ्रूट केक, पेस्ट्री, वहां पे मैकेनिकल यूज होगा। तो ये तीनों चीजें अलग अलग जगह अलग अलग बेक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिंग एजेंट। कुछ क्वेश्चन है रेजिंग एजेंट से? इज देयर एनी क्वेश्चन?
मिल्क, एग, फ्रूट एंड नट्स, ये तीन चीजें अभी बाकी है। मिल्क, मिल्क जो है वो क्या काम करता है? इनरिचिंग, इनरिचिंग एजेंट। That means it increases the nutritive value of the product in which it is added. So first function is enriching agent. Second, it is used as glaze. Okay. It also helps in providing softness to the product. Soft product बनती है when we are adding milk instead of water. If we are adding milk तो product और ज़्यादा soft होगी। तो basically इसका तीन function है। enriching agent कि वो nutritive value बढ़ा देगा जहाँ पे भी वो use हो रहा है। Next is glaze, मतलब कि कोई भी bake product को bake करने के पहले usually the fermented product और the pastries आप क्या करते हैं? milk को ब्रश में लगा के उसको वॉश दे देते हैं। जो बेक प्रोडक्ट बेक होने वाली है बिफोर बेकिंग आपको वॉश देना होता है एंड देन आप प्री हीटेड ओवन में उसको बेक करने डाल देते हैं। तो जब पक के आता है तो वो उससे चमकता हुआ निकलता है, दैट इज नोन एज ग्लेज। तो इट एक्ट्स एज अ ग्लेज। नेक्स्ट इज सॉफ्टनेस। सपोज हम मिल्क ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो व्हाइट ब्रेड के जैसा ही है जिसमें कि इनरिचिंग के लिए हमने मिल्क ऐड कर दिया, तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। So this is the function of milk. Next is egg. Egg, again it is somewhat similar. It acts as enriching agent. Glaze. Next, it also acts as raising agent. ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या काम है? फर्स्ट वन इज इनरिचिंग एजेंट, सेम जहां पे भी वो ऐड हो रहा है वो रिचनेस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज ग्लेज, दैट मींस ग्लेज में क्या होता है? होल एग में यूज होती है एग व्हाइट, beaten egg white. Egg wash is what? It is beaten egg white, also known as egg wash. तो किसी भी प्रोडक्ट को बेक करने के पहले यूजुअली ईस्ट प्रोडक्ट और यो पेस्ट्री प्रोडक्ट, उसको बेक करने के पहले हम एक वॉश देते हैं बीटन एग वाइट का और फिर उसको बेक करते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बेक होके निकलती है उसमें ग्लेज होती है, उसमें शाइन होती है। नेक्स्ट इज रेजिंग एजेंट। ये रेजिंग एजेंट का भी काम करता है। अब कहाँ पे ये रेजिंग एजेंट का काम करता है? फॉर प्रिपेयरिंग स्पॉन्ज। जब आप स्पॉन्ज बना रहे हो एग के साथ में, सो दैट टाइम व्हाट वी डू, हम लोग अंडा लेते हैं, एग लेते हैं, होल एग, उसमें शुगर डालते हैं एंड देन वी गो ऑन विस्किंग इट। जो तो जिसका वॉल्यूम इतना रहता है वो इतना ज्यादा हो जाता है एंड देन फाइनली वी इनकॉर्पोरेट लिटिल बिट ऑफ फ्लावर एट अ टाइम एंड फाइनली वी इनकॉर्पोरेट द एंटायर फ्लावर इनसाइड। सारा फ्लावर थोड़ा थोड़ा करके उसमें फिर हम फोल्ड करते जाते हैं, फाइनली उसको हम बेक करते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो है, जो आपका स्पॉन्ज है, वो राइज होता है। तो वो रेजिंग का भी काम करता है। दूसरा एग्जांपल है जहां की फर्स्ट वन इज योर स्पॉन्ज, सेकंड प्लेस that is used for as raising is shoe pastry. शू पेस्ट्री में दो चीजें रेजिंग का काम करती है, वन इज योर एग एंड सेकंड वन इज योर वाटर। दोनों चीज रेजिंग के काम में आती है। शू पेस्ट्री हमने बनाया था, शू पेस्ट्री उसके प्रोडक्ट जो हमने निकाले थे, इक्लेयर्स था, स्वान इक्लेयर्स था, क्रोकुम बश था, इफ यू रिमेंबर। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एग। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड नट्स। नाउ फ्रूट एंड नट्स, there are variety of fruit and nuts that can be used in preparing any of the baked product. Okay, so these are the ingredients, almost 9 ingredients which is used in bakery. So my session here is over. अब आपको जहां confusion है we can discuss. स्टूडेंट्स, माय सेशन इज ओवर। अब आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप पूछिए।
गुड आफ्टरनून। बोलिए। यस। So one thing you missed out is flavoring agent. Thank you, Kushbu. Next is the last one is flavoring agent, which is used in bakery. Now, as the name is telling that it provides flavor to the product, baked product. Now, since we are using egg, so there should be some flavoring which can overcome the flavor of the dominating flavor of egg. So for that we use vanilla essence, chocolate essence, mixed fruit essence. So essence is what? It is actually a flavored thing which is available in market in bottle. Okay, bottle में अवेलेबल है मार्केट में वनीला एसेंस, पाउडर में भी अवेलेबल होती है, chocolate essence again it is available in bottle, mixed fruit essence available in bottle. तो flavoring agent का काम क्या है? It adds flavor to the final product, the baked product, and mostly why we use it? To give an enhanced flavor. फॉर एग्जाम्पल अगर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं या फिर सपोज वी आर प्रिपेयरिंग अ ब्राउनी, तो ब्राउनी में हम क्या करेंगे? विल बी एडिंग लिटिल चॉकलेट एसेंस इनसाइड इट. So what happened? After once it is baked, when you will be having that brownie, you can feel the taste of chocolate as well, the fragrance of chocolate as well when you are having it. So that is the function of flavoring agent, to provide flavor to the baked product. Especially it is used, as I told earlier, that in case we are using eggs, so in that case the flavor of egg is too much dominating, so for that we are using vanilla essence there. But apart from that, wherever we are using any of the flavored product, like if we are preparing a chocolate mousse in confectionery, or if we are using brownie in bakery, so we can add these essence to add an extra flavor to the final product. So now it is over. Now if you are having any question, Sadaf, गुड आफ्टरनून बेटा, आ गई बात समझ में सारी? हाँ जी, ब्रेड रोल. ब्रेड रोल वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, नो? सिंगल नॉट, डबल नॉट हम लोगों ने बनाया ब्रेड रोल में. Bread roll. Initially, we have started our bakery with buns, और बन के बाद दूसरा जो प्रैक्टिकल था वो आपका ब्रेड रोल का था, जिसमें कि हम लोगों ने अलग अलग शेप दिए हुए थे. स्पाइरल शेप दिया हुआ था, प्लेटेड शेप, चोटी का शेप दिया हुआ था. द मिक्सचर इज सेम, जो हम लोग बन में यूज कर रहे हैं, जो रेसिपी, सेम रेसिपी इज यूज्ड हियर एज वेल. बस इसमें क्या है कि आप वैरायटी ऑफ शेप्स दे रहे हैं, और मेजरमेंट जो है इसका 20 से 30 ग्राम है. दैट मीन्स एक ब्रेड रोल जो है 20 से 30 ग्राम्स की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. और कुछ समझना है? सदफ, यस, रखो. यस, देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन.
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट जो है बेसिकली दो तरीके का ये होता है, ड्राई ईस्ट, फ्रेश ईस्ट। फ्रेश ईस्ट को हम लोग कंप्रेस्ड ईस्ट भी बोलते हैं, जो कि ब्लॉक फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, कंप्रेस्ड ईस्ट। ड्राई ईस्ट एक प्लेन ड्राई ईस्ट होता है और दूसरा होता है इंस्टेंट और एक्टिव ड्राई ईस्ट। देखिए, इंस्टेंट ईस्ट एंड एक्टिव ड्राई ईस्ट बोथ आर सेम, डोंट गेट कंफ्यूज। इंस्टेंट मतलब जो तुरंत यूज में आ जाए, एक्टिव मतलब जो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो, थोड़ा सा कोई इंग्रेडिएंट डालेंगे एक्टिव हो जाए। डिफरेंस कहाँ पे है फ्रेश ईस्ट और ड्राई ईस्ट में? हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, वी हैव स्टार्टेड आवर प्रैक्टिकल विथ फ्रेश ईस्ट, राइट तनीमा? हाँ, तो फ्रेश ईस्ट आपको सबसे पहला जो मैंने आपको मेथड बताया था, इट वाज ऑफ फ्लाइंग फर्मेंट, जहाँ की हम थोड़े से इंग्रेडिएंट को लेकर के फ्लाइंग फर्मेंट बना रहे थे, और फिर जिसमें कि आपका थोड़ा सा मैदा, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर, शुगर एंड ईस्ट, इंटायर ईस्ट, इसका हम लोग स्लरी टाइप बना रहे थे, और फिर उसको फर्मेंटेशन के लिए रख रहे थे। जब वो फर्मेंट हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था साइज में, तब जाके हम उसको डो बना दे रहे थे। और फिर फर्स्ट प्रूफिंग, सेकंड प्रूफिंग, फर्स्ट प्रूफिंग, नॉक बैक, सेकंड प्रूफिंग, एंड देन कटिंग एंड शेपिंग एंड देन बेकिंग, ये था, है ना तनीमा? यस। और उसके बाद जब हम लोग बनाना स्टार्ट किए नेक्स्ट प्रोडक्ट से, तो हम लोगों ने क्या किया, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में हम लोगों ने डाल दिया, राइट? हाँ, डिफरेंस यही है। जब हम लोग ड्राई ईस्ट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग फ्लाइंग फर्मेंट बनाते हैं, क्योंकि आपको जो आप लोगों ने जो पढ़ा है, पहला प्रोसेस जो ब्रेड मेकिंग का है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ईस्ट, राइट? तो एक्टिवेशन ऑफ ईस्ट कहां पे रिक्वायर्ड है? जाहिर सी बात है, इट इज कॉमन सेंस, वेयर द ईस्ट इज नॉट एक्टिव, जहां की ईस्ट एक्टिव नहीं है वहां पे एक्टिवेट करने की जरूरत है। जहां पे ईस्ट एक्टिव है, दैट मींस फ्रेश ईस्ट तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड ईस्ट ऑलरेडी वो एक्टिव है, तो वहां पे हमको जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्लाइंग फर्मेंट वाला जो फॉर्मूला है, वो फ्लाइंग फर्मेंट हम यूज करते हैं यूजुअली ड्राई ईस्ट के साथ में, और फ्रेश ईस्ट के साथ में हम स्ट्रेट डो मेथड जो है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में कंबाइन करके उसको बेक कर दें। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर है? सर वन इंफॉर्मेशन अपडेट कर, कल 11 बजे से रेडिसन के एलएनडी मैनेजर उनका स्पेशल सेशन रहेगा, इंटरव्यू स्किल्स के, तो लिंक टाइम पर मिल जाएगा। दे शुड बी प्रिपेयर्ड विद देयर पॉइंट्स दैट वी चार्ज फॉर। आप ही बोल रही है ना दे ऑल। यस, हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू afternoon, good afternoon. Tomorrow 11 a.m. you are having a special session through Google Meet from the L&D manager Radisson Blue Ranchi. शाकेश सर आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताए होंगे। तो कल सवेरे 11 बजे आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करके जहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी आती है वहाँ पर रहिएगा। रेडिसन ब्लू के L&D मैनेजर मैडम मोमिता हैं, आप लोग मिले हैं उनसे। उनका एक स्पेशल गूगल मीट के थ्रू सेशन होगा। सारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करिएगा, एक दिन पहले बताया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे नहीं आते हैं उन तक खबर पहुंचाइएगा। कुछ इंतजाम अगर वो करें 1-1.5 घंटे के लिए कल के लिए, ताकि वो भी उस सेशन में आ सकें। आपके इंटरव्यू स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे एक इंडस्ट्री की मैडम आप लोगों को बहुत सारा चीज़ अपडेट देंगी, ठीक है? सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। Okay, so Tanima, is that clear?
तो सारे बच्चे समझ लिए इस बात को कि जब हम लोग ड्राई ईस्ट यूज कर रहे हैं वहां पे हम लोग पहला जो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ ब्रेड मेकिंग का जो मेथड देखा था उसमें 7 to 10 स्टेप्स थे। तो वहां पे जो सबसे पहला स्टेप था कि एक्टिवेशन ऑफ ईस्ट। सो एक्टिवेशन ऑफ ईस्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ड्राई ईस्ट। ठीक है, इफ यू आर हैविंग फ्रेश ईस्ट तो आपने देखा भी कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम तो एक्टिवेशन ऑफ ईस्ट वाला फॉर्मूला अपना के बंस बनाए, लेकिन उसके बाद से हम लोग सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स करके स्ट्रेट डो मेथड वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो हम लोगों को यही समझना है कि जब हमारे पास फ्रेश ईस्ट है तो स्ट्रेट डो मेथड यूज करेंगे जहां की एक्टिवेट नहीं करेंगे, और हमारे पास जब ड्राई ईस्ट है तो हम लोग एक्टिवेशन ऑफ ईस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे का फॉर्मूला सेम होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? Sponge, next meet we'll be discussing on sponge. Yes. Anything related with this yeast and yeast product and role of ingredients used in bakery? कहीं पे किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यस, क्लियर नहीं है बेटा, तुम क्या पूछना चाह रही हो? ईस्ट को हम लोग मीना, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, एनीवन कैन हेल्प? हाँ, ओके। सी, यूजुअली ड्राई ईस्ट को आप लोग 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक यूज कर सकते हैं ड्राई ईस्ट। ठीक है, लेकिन व्हेन इट इज फ्रेश ईस्ट तो हम लोग यूजुअली 3 दिन से 5 दिन तक यूज कर सकते हैं, दैट टू बाई